Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examinations, today I am here with you all with the topic number system. So in this video, today we'll be learning about various types of numbers, divisibility rule, various concepts related to the topic which are used in solving various questions related to number system. So let's start with the topic, that is your number system. So first of all, what natural numbers are? Natural numbers are the counting numbers starting from 1, like 1, 2, 3, 4. हम ये सारे numbers यदि लेते हैं till infinite, whatsoever the number comes in our mind is the set of your natural number. It is denoted by capital N. If we are going to take together along with the natural number 0 also, then we are getting the set of your whole numbers. That means numbers starting from 0, then 1, 2, 3, 4 till infinite, whatsoever number comes in our mind is a set of your whole numbers. When we take all the whole numbers along with that negative natural numbers also, then we are getting set of integers. That means in the negative direction even till minus infinite, in the positive direction even till infinite. If we are taking all the numbers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, all these numbers if we are taking, then the set of the numbers which we are getting is your integers. It is denoted by capital Z. Then what prime numbers are? Numbers which are having only two factors. One is the one only and the another is the number itself. मतलब ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर्स हों, एक फैक्टर तो हो वन और दूसरा फैक्टर हो वो नंबर खुद. यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर. लाइक इफ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल, देन 3 is having only two factors. One of the factor is 1 and another factor is 3. So 3 will be a prime number. Similarly, we are going to see 11. 11 is having only two factors. One is 1, another is 11. So such type of numbers which are having only two factors, one is 1, another is a number itself, are known as prime numbers. Then comes your composite number. Composite numbers are the numbers which are having more than two factors. Like the numbers which are not prime are your composite number. Like if I am going to take an example of 4, so 4 is having three factors. One of the factor is 1, another factor is 2, and the third factor is 4. So because the 4 is having more than two factors, so such type of numbers are known as composite number. Then comes your twin prime numbers. Twin prime numbers are the numbers, they are the prime numbers only, which is having a gap of 2. Like 3 is a prime number, 5 is a prime number, and the difference between these two prime numbers is 2. That's the reason it is an example of twin prime. Similarly, if I am going to take 5 and 7, so 5 is even a prime number, 7 is even a prime number, and the difference between these two numbers is 2. That's the reason it is your twin prime number. Then what are co-prime numbers? Co-prime numbers are the numbers which are having HCF of 1. That means it is not compulsory that the numbers will be prime. It is not compulsory. But if the HCF of the given numbers is 1, then we say such type of numbers to be your co-prime number. Every consecutive number will be your co-prime number. If I am going to take example of 4 and 5, suppose. They are consecutive numbers, although 4 is not a prime number, but still 4 and 5 is an example of your co-prime numbers. These are some various type of numbers. Now what is rational numbers? Rational numbers are the numbers which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equivalent to 0 and P and Q are any integers. Such type of numbers are known as rational numbers. And the decimal representation of any rational number will be either terminating types or non-terminating repeating types. Then your irrational numbers. Irrational numbers are the numbers which are having their decimal representation as your non-terminating, non-repeating type. Like your root of 2, root of 3, all these are your irrational numbers. And when we combine together all the rational numbers and all the irrational numbers together, it becomes a set of your real numbers. So these are all about your numbers. Like if I am going to say, first of all, we had taken natural numbers, then we had taken whole numbers, then integers like this. So whatsoever the natural numbers are there, all the natural numbers are your whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers, because in the whole number 0 is even there, but in the natural number 0 is not there. That means all the natural numbers will be whole numbers, but all the whole numbers will not be natural. Similarly, all the natural number and all the whole numbers will be integers, but all the integers will neither be a whole number nor it will be a natural number.
Similarly, we can say that all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers are your rational numbers. Rational numbers are denoted by capital Q. So all these are part of your rational numbers, but all the rational numbers are not coming under these categories. Similarly, all the rational numbers and all the irrational numbers are your real numbers. This is all about your numbers. Then coming to your divisibility rule. Now divisibility rule says that if we are going to divide any number by 2, how we can directly see and can tell whether, without dividing it actually, that whether the number will be divisible by 2 or not. If the unit place of the numbers are 0, 2, 4, 6 or 8. If the unit place is 0, 2, 4, 6 or 8, then we will be saying that the number will be divisible by your 2. That means at unit place, if the numbers are 0, 2, 4, 6, 8, then the number will be divisible by 2. For divisibility of 3, if the sum of all the digits of the number is divisible by 3, then we will be saying that the number is divisible by 3. Like if I am going to take an example, I am taking 111. This is a number. 111 is a number. If I am going to take sum of all these digits, so 1 plus 1 plus 1, it is becoming 3, and 3 is divisible by 3. So 111 will be divisible by 3. For checking divisibility of by 4, what we will be doing is, whatsoever the number is there, if the last 2 digits of the number are divisible by 4, then we will be saying that the number is divisible by 4. Like suppose your number is 2, 4, 6, 5, 8, 4. So last 2 digits are 84, right? So if 84 is divisible by 4, we will be saying that this number will be divisible by 4. For checking divisibility by 5, the unit place should be either 0 or 5. If the unit place is 0 or 5, we will be saying that the number will be divisible by 5. For checking the divisibility by 6, if the given number is divisible by 2 and 3, both the numbers, then we will be saying that the given number is divisible by 6. For checking the divisibility by 7, what we will be doing is, we will be making pair of 3 numbers from the right hand side. These 3 numbers, then these 3 numbers. Suppose there are 2 more numbers over here, it is 32 even. So we will be taking this as even one of the group. Then what we will be doing, we will be taking sum of the digits, sum of the numbers which are at even places and which are at odd places. Now this and this is a group. First of all, we will be adding these two, that is 584 plus 32 we will be doing. And after that we will be subtracting it. 246 will be subtracted from it. If the number, whatsoever the difference we are getting, if it is divisible by 7 or if it is coming equivalent to 0, in that case we will be saying that the number is divisible by 7. मतलब करना क्या है, हमें 3 का ग्रुप बनाना है राइट हैंड साइड से. तो एक ग्रुप हमने ये बनाया, फिर हमारा ये ग्रुप बना, फिर बाद में जितने भी डिजिट्स हैं, अगर 3 डिजिट्स हैं तो विल बी टेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3. इफ 3 इज नॉट देयर, सो व्हाटएवर द नंबर्स आर देयर, विल बी मेकिंग अ ग्रुप ऑफ इट. नाउ अब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है. तो फर्स्ट एंड थर्ड पे जो आपकी नंबर्स बन रहे हैं उनको हम ऐड करेंगे. हम 584 को और 32 को ऐड करेंगे और हमारा एक दूसरा ग्रुप क्या है, 246 का है. अब यदि यहाँ पे और नंबर्स भी होते तो यहाँ पे इवन प्लेसेस पे भी एक ग्रुप बन जाता एंड वी वुड हैव एडेड इट. लेकिन यहाँ पे अभी और नंबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एडिंग दीज 2 numbers. Then whatsoever the sum will be coming, we will be subtracting 246 from the sum. जो हमारा डिफरेंस आएगा, यदि वो 0 है या फिर 7 से डिविजिबल है, in that case the whole number will even be divisible by 7. Similarly for 13 even we check it. From the right hand side we make a group of 3 and then जैसे सपोज यही नंबर है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये एक नंबर हो गया. तो अब जो इन दोनों नंबर्स का सम आया उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 246 को. यदि जो डिफरेंस है वो 0 है या 13 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 13 also. Now so till 7th we have checked. So for divisibility of 8, what we will be doing is, हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे. हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे. यदि लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. Now for divisibility by 9, what we will be doing is, we will be adding all the digits of the given number. Like suppose हमें इसकी divisibility check करनी है 9 से. So what we will be doing is, हम 4, 5, 8, 6, 4, 2, 3, 2, 3 इन सब डिजिट्स को, ये जितनी भी डिजिट्स हमें गिवन है नंबर के अंदर, उन सभी डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे.
यदि इन सब डिजिट्स का जो एडिशन आ रहा है, जो सम आ रहा है, यदि दैट विल बी डिविजिबल बाय 9, देन द गिवन नंबर विल इवन बी डिविजिबल बाय 9। यानी कि जितनी भी डिजिट्स हैं गिवन नंबर में, यदि उन सब का सम 9 से डिविजिबल होगा तो ये गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट शुड बी 0। जो यूनिट प्लेस है किसी भी गिवन नंबर की वो 0 होनी चाहिए। यदि वो 0 है तो गिवन नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। फॉर चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय 11 व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम ऑड नंबर पे जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उन सबको ऐड करेंगे। जो इवन नंबर पे डिजिट्स आ रही हैं हम उन सबको ऐड करेंगे। हमने ऑड नंबर की जो डिजिट्स हैं लाइक 4, 5, 4 देन 2, इन सबको ऐड किया। जो इवन नंबर्स पे आ रही हैं लाइक 8, 6, 2, 3, इन सबको ऐड किया। इसके बाद ये जो दोनों सम आए उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। If the difference is either 0 or divisible by 11, then the given number will be divisible by 11. Now for checking the divisibility by 12, what we'll be doing is, we know that 12 could be written as 3 into 4. राइट अगर हम किसी भी नंबर को दो को प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर है बिकॉज इनका जो HCF है वो 1 है। यानी कि यदि हमने 12 को 3 into 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें सपोज ये चेक करना है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, तो व्हाट वी विल बी चेकिंग इज कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 और नॉट। अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि यदि कोई भी नंबर हम दो को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सपोज आई एम सेइंग फॉर 14 could be written as 2 multiplied by 7 and 2 and 7 both are your co-prime numbers। यानी कि यदि हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 14 से डिविजिबल है या नहीं है, then what we will be doing is we will be checking whether the given number is divisible by 2 and 7 or not। यदि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, in that case this number will be divisible by 14 also। So these are some of the concepts of your divisibility। Now let's understand some more type of concepts related to your number system। देखिए यदि हमें कोई नंबर फाइंड करना है, कोई ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड x, y, z लीविंग द रिमाइंडर्स a, b and c रिस्पेक्टिवली। यानी कि उस ग्रेटेस्ट नंबर से यदि हम x को डिवाइड करें तो रिमाइंडर a आना चाहिए, यदि y को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर b आना चाहिए, और यदि उस नंबर से हम z को डिवाइड करें तो रिमाइंडर c आना चाहिए। तो यदि इस तरीके का हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b एंड z माइनस c। सबसे पहले हम x में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, z में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उन तीनों ही नंबर्स का HCF जो भी होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर। यानी इस कंडीशन में जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है, दैट विल डिवाइड द गिवन 3 numbers leaving remainders। some remainders are given to us। in that case we have to find the HCF of x minus a, y minus b and z minus c। अगर कंडीशन इस तरीके की है कि वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x, y एंड z लीव्स रिमाइंडर्स a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। यानी हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर को यदि x से डिवाइड किया जाए तो a रिमाइंडर आए, उस नंबर को यदि y से डिवाइड करें तो b रिमाइंडर हो, और उसी नंबर को यदि z से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा c हो। हमें अगर वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो जनरली जो होगा क्या कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर x माइनस a, यदि if it is least number, whenever least number is said we have to find LCM, whenever greatest number is said we have to find HCF in most of the cases। लेकिन देखिए अब ये लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारे को 3 गिवन नंबर्स हैं, उस नंबर को यदि इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स ये आने चाहिए। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c कोई भी एक कांस्टेंट होगा, मतलब इनका डिफरेंस जो होगा वो सेम ही आएगा। आपका x को यदि x में से सब्ट्रैक्ट करें हम a को, y में से सब्ट्रैक्ट करें हम b को और z में से सब्ट्रैक्ट करें हम c को, तो ये तीनों एक इक्वल नंबर के इक्विवेलेंट आएंगे। यानी कि x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c की वैल्यू कुछ सेम नंबर आएगी। हमने अज्यूम कर लिया कि वो इक्वल नंबर आपका r है। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी LCM ऑफ x, y, z, इन तीनों का हम LCM निकालेंगे माइनस ऑफ r।
ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है x में से a को सब्ट्रैक्ट करने पे, y में से b को सब्ट्रैक्ट करने पे, z में से c को सब्ट्रैक्ट करने पे जो सेम नंबर आ रहा है, दैट नंबर वी आर अज्यूमिंग टू बी r। तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा इस कंडीशन में, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ x y z एंड जो भी एलसीएम आएगा उसमें से हम r को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सी यदि एलसीएम हमारा x y z इन तीनों नंबर का कुछ भी आता है, सपोज वी आर सेइंग कि एलसीएम इज कमिंग एज 45 सपोज, तो 45 यदि एलसीएम है तो 45 को हम किसी भी नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल इवन बी कंसीडर्ड एज द एलसीएम ओनली, बट दैट वोंट बी द लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर नहीं होगा, लेकिन वो सारे ही नंबर ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशंस को, यानी कि मतलब उन नंबर्स को यदि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 45 आ रहा है, व्हाट इट इंडिकेट्स कि 45 जो है वो कंप्लीटली आपको डिवाइड कर रहा है, वो लीस्ट नंबर है जो कि कंप्लीटली इनको डिवाइड करेगा, जो कि कंप्लीटली x से भी डिवाइड हो जाएगा, y से भी डिवाइड हो जाएगा और z से भी डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 45 है। यानी कि 45 इंटू अगर 2 करें तो 90 आएगा, तो 90 भी इन तीनों ही नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 45 इंटू के वी कैन मल्टीप्लाई इट by k, that means k could be any of the natural number। ये जो भी नंबर्स आएंगे, 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 90, 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे ही नंबर्स जो होंगे वो x y z से डिवाइड हो जाएंगे। तो in this type of condition we'll be finding LCM of x y z and we'll be subtracting this common number. Now if the question is the least number which when divided by a, b and c leaves the same remainder r, यानी कि कोई एक नंबर है जो कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको कि यदि हम a से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर r है, उसको हम b से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर r है, उसको यदि हम c से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर हमारा r ही रहे। तो यदि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और जो सेम रिमाइंडर है उसको हम ऐड कर देंगे। यदि इस रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे तो हर कंडीशन के अंदर, चाहे से हम उसको a से डिवाइड करें, चाहे से हम उसको b से डिवाइड करें, चाहे से हम उसको c से डिवाइड करें, इन ऑल द कंडीशंस द रिमाइंडर विल बी r। Now what binomial theorem says? Binomial theorem के according if a plus b whole raised to the power n is there, a could be any number, b could be any number, n could be any number, तो उसका जो expansion होता है that is summation of k की value 0 से n तक vary करेगी, n c k where c is your combination, a raised to the power n minus k, b raised to the power k। See, the combination or permutation we will be learning in detail in that chapter only when we will be making video of permutation and combination, so in depth we will be learning over there। एक हल्का सा what the formula for combination is that only I am explaining it over here। सबसे पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल सपोज हमें n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है या सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि उसको हम 1 से लेके उस नंबर तक के जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं उन सबका मल्टीप्लाई करें तो वी विल बी गेटिंग फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। अगर हम बोलें फैक्टोरियल ऑफ 7, सो इट विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7। अब आपका n c k क्या होता है, यानी हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, उसमें से हमें कोई k नंबर ऑफ थिंग्स को लेकर हमें ग्रुपिंग करनी है, तो कितने तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है वो हमें पता चलता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से। सो फॉर द केस ऑफ कॉम्बिनेशन द फॉर्मूला इज फैक्टोरियल ऑफ n ओवर फैक्टोरियल ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस k। ऑब्वियसली n की वैल्यू ज्यादा होगी k से, क्योंकि n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उसमें से हमें k नंबर ऑफ आइटम्स को लेके ग्रुपिंग करनी है। सपोज 5 बॉल्स हैं और 5 में से किन्हीं भी 2 बॉल को लेके हमें ग्रुप्स बनाने हैं, तो हम कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, तो n विल बी 5 इन दिस केस एंड k विल बी 2 इन दिस केस एंड द वैल्यू ऑफ n c r, that means 5c2 will be factorial of 5 divided by factorial of 2 multiplied by factorial of 5 minus 2, that is 3. This is how we can find directly how many groupings will be there. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स समेशन। समेशन सपोज मैं कहती हूँ कि हमें a प्लस बी होल रेज टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी की पावर हमें 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 3,
3c0, it will be 3c0 a raised to the power n minus k। यहाँ पे हमारा k की वैल्यू है वो 0 है, यानी a की पावर तो 3 हो गई और b की पावर 0 हो गई। b की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू इनिशियली हमने फर्स्ट टाइम में 0 ली है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म विल बी, अब यहाँ पे अब जब हमारी k की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 हो गई वैल्यू उसकी, तो ये हो गया आपका 3c1 a रेज टू द पावर 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे b की वैल्यू b रेज टू द पावर 1 आ गई, प्लस यहाँ पे अब k की वैल्यू 2 हो गई, k की वैल्यू 2 हुई तो 3c2, a की पावर कितनी हुई 3 माइनस 2 1 हो गई, और b की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, प्लस 3, अब हम k की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 3c3 a की पावर 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो a की पावर तो हो गई 0 और b की पावर हो जाएगी 3, राइट। तो इस तरीके से यदि हमें कोई भी दो नंबर्स दे रखे हैं और उसकी पावर कुछ भी है तो हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो सब भी इसी फॉर्मूले से डिराइव होती है। अदरवाइज वो क्योंकि वहां पे पावर कम है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके भी डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द जनरल फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ any such formula, like if it is your a plus b, or we can say if it is your say 3 plus 7 whole raised to the power 25. So if we are going to multiply 25 times, so it will be very difficult. So this is how we can find it out. अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3c0, so यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, right? So it is your 3 minus 0, that is 3 only. So factorial 3 cancel, it will be 1. So this part will be 1. 3c0 की वैल्यू 1 हो गई, a की पावर 3 is the first term, b की पावर 0 will be 1 only. अब हम बात करते हैं 3c1 की। 3c1 की मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3, ये तो हो गया फैक्टोरियल ऑफ 3, यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल ऑफ 1, and n minus k means factorial of 3 minus 1, that is factorial of 2. Factorial of 3 मतलब 3 into 2 into 1. Factorial of 2 means 2 into 1. So 2 से 2 cancel हुआ, बचा क्या हमारे पास 3. So it will be 3a square b plus 3c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अगेन इट विल बी योर 3 ओनली a b square, और 3c3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, और इट विल बी a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, ये b क्यूब हो गया। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब ये काम कहाँ आते हैं कि हमारे को क्वेश्चन दे दिया कि सपोज 7 रेज टू द पावर से 80, 7 रेज टू द पावर 80 को यदि हम डिवाइड करें से 6 से, यदि हम डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले 7 रेज टू द पावर 80 है, इसको डिवाइड हमें करना किससे, 6 से करना है। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। 7 को वी कैन राइट एज 6 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 80 डिवाइडेड बाय योर 6। हमें चेक करना है कि इसकी जो रिमाइंडर है वो क्या होगा। अब देखिए 6 प्लस 1 रेज टू द पावर 80 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या हो गई, 80 हो गई, राइट। तो अब यदि इस केस में हम देखें तो 6 को देखो 6 से डिवाइड करेंगे, यानी जहां भी a आ रहा है, यदि 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 ही आ गया। 6 को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी जहां भी a की टर्म्स आ रही हैं वहां तक योर रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। आपने हम अगर हमारा कोई नंबर है से 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, यदि इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज द होल नंबर अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यदि इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0 ओनली। इस नंबर को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर विल बी 0। इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर विल बी 0 ओनली। यानी कि हम जहां भी a आ रहा है वहां कितनी भी टर्म्स हम ले लें उन सब का रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आपके 3c0 की क्या वैल्यू है या आपके b का क्या पावर जा रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जहां भी a की टर्म्स आ गई वहां पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि आपकी ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ रिमाइंडर 0,
सेकेंड टर्म में रिमाइंडर 0, ए स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म में रिमाइंडर विल बी 0 बिकॉज ए आ रहा है। जो भी आएगा, जो भी फाइनल आपका रिमाइंडर सेलेक्ट होगा वो केवल लास्ट टर्म की वजह से सेलेक्ट होगा, वो सिर्फ आपके बी की वजह से सेलेक्ट होगा। और इस कंडीशन में b का कोफिशिएंट विल बी 0 बट इट विल बी b रेज टू द पावर योर n, जो भी हमारा n है वो आएगा फाइनली। यानी कि इस कंडीशन में यदि हम देखें तो टोटल आपकी कितनी टर्म्स बनेंगी, टोटल आपकी बनेंगी 80 प्लस 1 81 टर्म्स बनेंगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल 81 टर्म्स बनेंगी। उन 81 टर्म्स में से 80 टर्म्स तो ऐसी होंगी जिनके अंदर एक ही टर्म्स आ रही हैं, और एक ही टर्म्स आ रही हैं तो इस वजह से उन सब के अंदर रिमाइंडर आपका 0 आएगा। केवल लास्ट वाली टर्म जहां पे आपकी एक ही टर्म्स नहीं आ रही वो क्या होगी, आपकी b रेज टू द पावर n होगी। वो लास्ट की टर्म क्या होगी, b रेज टू द पावर n होगी, और वही डिसाइड करेगी कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि जो लास्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 1 रेज टू द पावर 80 बनेगी, 1 रेज टू द पावर 80 बनेगी। यानी अब जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि रिमाइंडर क्या होगा कि 6 से डिवाइड करें, तो वो क्या होगा, जो 1 की पावर 80 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब 1 की पावर 80 मीन्स 1 ओनली। अब 1 को यदि हम 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि इस तरीके से अगर कुछ भी गिवन है उसको इस नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। वी विल बी सॉल्विंग वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट व्हाइल वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। सो लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ। Now modulus arithmetic for finding remainders when a raised to the power is divided by your n। अगर हमने यहाँ पे देखा a raised to the power n है कुछ भी, उसको यदि n से डिवाइड करना है, सपोज जैसे यही मान लीजिए a की वैल्यू सपोज हम 7 मान लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 80 मान लेते हैं, और n से यदि डिवाइड करना है n की वैल्यू 6 मान लेते हैं। तो यदि हमें इस तरीके से फाइंड करना होता है तो हम मॉड्यूलस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो कि इस तरीके से वर्क करता है। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उनका रिमाइंडर क्या होगा। जैसे कि यदि हम बात करें 3 की बात करें, 3 की पावर 1 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, यानी मॉड मान लेते हैं हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 की पावर 1 मीन्स 3 ओनली। 3 को हमने 7 से डिवाइड किया तो योर रिमाइंडर विल बी 3, क्योंकि 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 ही है। अब 3 की पावर 2 ले लिया, 3 की पावर 2 को मॉड 7 मतलब 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 2 मतलब 9 हो गया, 9 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 इज 7, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो उस केस में रिमाइंडर आपका 2 होगा। अब हम 3 की पावर 3 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो 3 की पावर 3 मीन्स 27, 27 को यदि 7 से डिवाइड किया तो 7 14 7 से 21 हो गया, 7 3 से 21 हुआ, 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 विल बी द रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में 6 रिमाइंडर आएगा। अब हमने 3 की पावर 4 लिया, 3 की पावर 4 कितना हो गया, 81 हो गया। तो अगर हम 7 को देखें तो 70 और 77 11 टाइम्स करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो 77 और 81 आ रहा था तो इट विल बी 4 विल बी द रिमाइंडर। इस तरीके से एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपका रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा, यानी कि वो स्टेप होगा 7th स्टेप। फॉर द केस ऑफ 3 7th विल बी द स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। 5th स्टेप पे 3 की पावर 5 को यदि हम डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो सम रिमाइंडर विल बी देयर। 3 की पावर 6 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे देन ऑल्सो सम रिमाइंडर विल बी देयर। लेकिन जब हम 3 की पावर 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारा रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। अगेन हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब यदि 3 आ रहा है और हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 की पावर से 50, 3 की पावर 50 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए 3 की पावर 50 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि 3 की पावर 6 तक यदि हम जाते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आता है, उसके बाद रिमाइंडर चेक आपका रिपीट होने लगता है। तो हम इसको 3 की पावर 6, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 और 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। 3 की पावर 6 होल रेज टू द पावर 8 मीन्स 6 6 6 8 48, 48 इंटू 3 की पावर 2 मीन्स 48 प्लस 2 विल बी 50। तो हम 3 की पावर 50 को इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 7।
अब यहाँ तक तो हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो वो रिपीट ही होना है उसके बाद 3 की पावर 6 के बाद तो वापस से उसका रिमाइंडर रिपीट ही होना है। तो 3 की पावर 6 में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने 8 ले लिया, तो ये वाला पोर्शन हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, 3 की पावर 2 से डिसाइड करेंगे। अब यदि 3 की पावर 2 को हम डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर आता है हमारा 2, यानी कि 3 की पावर 50 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2. This is your modulus arithmetic concept for finding remainders. Again, we will be using this concept in solving various questions. अब यदि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यदि हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर है, एक P1 है, एक P2 है, P1 raised to the power any number is there multiplied by P2 raised to the power any number is there where P1 and P2 are any prime numbers. तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, it is your a plus 1 multiplied by b plus 1 gives us the number of factors. यदि हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, सपोज आई एम सेइंग कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 1 फ्रॉम 1 to से 50, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 टिल 50, हमें इन सब नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है। सो 1 से लेके 50 तक के नंबर, मतलब स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम 1 ओनली। तो 1 से लेके यदि 50 तक के नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो इट विल बी n is 50 multiplied by 50 plus 1 will be 51 divided by 2. This will be the sum of the numbers from 1 to 50. Using the formula n plus 1 by 2, we can find it out. Then sum of infinite series in GM. GM is geometric mean. अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने पढ़ा है क्लास 10th के अंदर कि यदि कोई सीरीज है जिसके अंदर नेक्स्ट नंबर जो होता है वो हम प्रीवियस नंबर में फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे फाइंड आउट करते हैं। लाइक अगर हमारा सीरीज है 2 में 2 ऐड किया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया 8 हो गया। तो इस तरीके की जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कि नेक्स्ट नंबर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे हमें मिलता है, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यदि हमारी सीरीज इस तरीके की ना हो के ऐसे हो कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करके मिले, लाइक फर्स्ट नंबर है हमारा 2, सेकेंड नंबर 2 में सपोज हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, अब 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ गया। जब हमारी सीरीज इस तरीके से बनती है जिसमें नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो उस तरीके की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। इस ज्योमेट्रिक मीन में यदि कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो उस इनफाइनाइट सीरीज का सम जो होता है दैट इज a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a विल बी द फर्स्ट टर्म और r जो है वो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ओवर हियर दिस नंबर इज इवन 2 ओनली। तो यानी कि a अपॉन 1 माइनस r गिव्स यू द सम ऑफ द सीरीज। उस सीरीज का सम हमें किससे मिलता है, a अपॉन 1 माइनस r से मिलता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे while we will be solving various questions related to your number system. Now let's understand various questions which are asked in various competitive examinations. So here is the first question. If a is equivalent to 5, b is equivalent to 15, find the value of a upon b plus 1 multiplied by b upon a plus b minus a. So हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हम ये a और b की वैल्यूज रखेंगे। वैल्यू ऑफ a इज 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b इज 15 डिवाइडेड बाय a दैट इज योर 5 प्लस b माइनस a, b इज 15 माइनस a इज योर 5. So we have kept the values. अब देखिए 5 3s are 15, so 3 will come over here plus 1 it is. So 5 3s are 15. We will be taking LCM over here, so 3 will be the LCM. It will be 1 plus 3 multiplied by your, this is your 3 plus 15 minus 5 will be your 10. अब ये 3 से 3 cancel हो जाएगा, 1 plus 3 will be your 4, 4 plus 10 will be 14 will be the answer. Now let's see the second question. A woman bought 5 kilogram 640 grams potatoes, 3 kilogram 37 gram onion and 6 kilogram 8 grams tomatoes. She found 2 kilogram 45 gram tomatoes rotten and returned back. Find the weight of vegetables she took home. यानी जो women है उसने 5 किलोग्राम 640 ग्राम से टोमेटोज लिए हैं
जो अनियन लिया है वो लिया है 3 किलोग्राम 37 ग्राम्स, और जो टोमेटोज हैं वो है 6 किलोग्राम 8 ग्राम्स। इतना उसने टोटल वेजिटेबल्स ली हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड ऑल दीज थ्री, दैट इज पोटैटोज, अनियन एंड टोमेटो, जो उसने परचेज इनिशियली किया था। अब उसमें से रिटर्न कितना कर दिया, 2 किलोग्राम 45 ग्राम्स टोमेटोज रिटर्न कर दिए बिकॉज इट वाज रॉटन। तो जो हमारा सम आएगा उसमें से हम इस वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ द वेजिटेबल्स मिल जाएगा जो कि शी टुक होम। So first of all we know that 1 kilogram is your 1000 grams. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, यानी कि अभी जो टोमेटोज हैं, पोटैटोज हैं यहाँ पे, वो है 5 किलोग्राम 640 ग्राम्स है। यानी कि यदि हम इस 640 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करें तो इट विल बी योर 0.640 किलोग्राम। यदि इस हम ग्राम को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय योर 1000, दैट विल बी 0.640। यानी कि पोटैटोज कितने हो गए, 5.640 किलोग्राम पोटैटोज हो गए। अनियन कितना हुआ, 37 ग्राम को यदि हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.037 किलोग्राम। सो आपका जो अनियन हुआ वो कितना हुआ, 3.037 किलोग्राम अनियन हो गया। टोमेटोज में ग्राम्स में 8 ग्राम्स है, यदि 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.008 किलोग्राम। सो आपका टोमेटो हुआ 6.008 किलोग्राम। ये हमारे तीनों की क्वांटिटी इनिशियली जो उन्होंने परचेज की थी। नाउ इफ वी विल बी एडिंग इट, 15 5 कैरी ओवर 1, 4 3 7 and 1 8, it will be 6, 11 to 14, 14.685 किलोग्राम टोटल वेजिटेबल्स का वेट था। अब इसमें से 2 किलोग्राम 45 ग्राम्स टोमेटो जो है वो रॉटन निकले, तो रिमेनिंग कितने वेट बचा, 14.685 में से वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 2 किलोग्राम 45 ग्राम्स। नाउ 45 ग्राम्स को ये 1000 से डिवाइड किया तो विल बी गेटिंग 0.045, so it will be your 2.045 kilogram. Now we will be subtracting it. 5 minus 5 will be 0. 8 minus 4 will be 4. It will be 6. It is 2. So finally जो weight vegetable की वो अपने घर लेके जा रही हैं, that will be 12.640 kilogram. Now let's see the third question. Find the largest 4-digit number which when divided by 21, 42, 147, 105 give the remainder 14, 35, 140 and 98 respectively. तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको यदि हम 21 से डिवाइड करें तो 14 रिमाइंडर आए, 42 से डिवाइड करें तो 35 रिमाइंडर आए, 147 से डिवाइड करें तो 140 रिमाइंडर आए, और 105 से डिवाइड करें तो 98 रिमाइंडर आए। और वो जो नंबर है वो आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो पहले तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको कि यदि हम इन नंबर से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर्स आ जाएं। तो देखिए 21 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 14 रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज योर 7। 42 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 35, दैट मीन्स 7। आपका 147 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 140, दैट इज योर 7। 105 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 98, दैट इज इवन 7। यानी कि इस कंडीशन में आपके इनका डिफरेंस जो है दैट इज सेम थ्रू आउट क्या है, वो आपका सेम है, दैट इज योर 7777। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, पहले तो हम इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ योर 21, 42, 147 एंड 105। इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो इट विल बी 21, 42, 147 and 105. It is divisible by 2. It's not 2, 1. It is not divisible. It is even not divisible. 3, 3, 7 is 21. 3, 7 is 21. 12, yeah. So 3 3s are 9. 3 4 is 12. 3 9 is 27. 3 3s are 9. 3 5 is 15. Divisible by 5. 7 7 49. 5 7 is 35. Now divisible by 7. 1 1 7 7 is 49. Again by 7. So LCM of these numbers will be 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 7. That will be 5 2s are 10 and 7 3s are 21.
21 into 7, 7 1 is 7, 7 4 is 21. By 7 is 21, 7 1 is 7, and 7 2 is 14. So 1470 will be the LCM of the given numbers. इन numbers का जो LCM आ रहा है वो कितना आ रहा है 1470 आ रहा है, लेकिन हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. तो यानी कि हमें LCM यदि 1470 है तो ये नंबर इन सब नंबर से डिविजिबल है, लेकिन यदि इसके हम मल्टीपल्स लेंगे यानी इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी इन सब से डिविजिबल होगा, इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी इन सब से डिविजिबल होगा. यानी कि 1470 इंटू के जो भी नंबर आएगा, के कुड बी एनी नेचुरल नंबर. सो यदि जो भी नंबर आ रहा है वो सारे के सारे नंबर इन सब नंबर से डिवाइड होंगे. अब यदि ये डिवाइड होंगे लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब देखिए यदि हम यहाँ पे 7 लेते हैं तो 7 ये लिया 7 28, तो इट इज गोइंग टू एक्सीड योर, इट विल बिकम अ 5 डिजिट नंबर. तो हम यहाँ पे के की वैल्यू 6 लेते हैं. के की वैल्यू 6 ली, के की वैल्यू 6 ली तो नंबर कितना हो गया 1470 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल बी द नंबर. सो इट विल बी 6 6 7 42, 4 6 4 24, 24 28 2 6 6 8820. 8820 जो है वो आपका नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ जो कि इन सब से डिवाइड होगा. अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर्स. ये सब चाहिए, ये सब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए. तो ये रिमाइंडर्स कब आएंगे, जब इस नंबर में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमने पहले जब डिस्क्राइब किया था एक्सप्लेनेशन में, उसमें देखा था कि यदि ये कंडीशन आ रही है तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर माइनस योर आर. आर हमने क्या लिया था, वो कॉमन डिफरेंस जो इन सबको सब्ट्रैक्ट करने पे वो कॉमन नंबर आ रहा है. यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज एलसीएम ऑफ ऑल दीज 8820 minus of 7. That will be the required number. 10 minus 7 किया तो हमने आ गया 3, and then it will be 1. 8813 will be the number which is required to us. Now let's understand some more questions related to the topic. So here is the fourth question. What is the highest number between 4000 and 5000? Which when divided by 12, 16 and 24 would leave remainder 4. यानी 4000 से 5000 के बीच का हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए जिसको कि यदि 12 से 16 से 24 से यदि डिवाइड किया जाए तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो आपका 4 ही आए. तो हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में देखा था कि इस तरीके की कंडीशन में जो रिक्वायर्ड नंबर होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ दीज गिवन नंबर्स प्लस योर रिमाइंडर दैट इज योर 4. यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या है, बेसिकली एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड नंबर. लेकिन जो हमारा नंबर है वो 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए और वो भी हाईएस्ट नंबर होना चाहिए. इट इज द गिवन कंडीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ योर एलसीएम ऑफ 12, 16 and 24. we will be finding it out. तो यदि इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो इट इज 12, 16, 24. 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 12, then 2 3s are 6, 2 4 is 8, 2 6 is 12, then again 2 3, 2 2s are 4, 2 3s are 6, again 2 3 1 3, then it is 3. So we will be multiplying. 2 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 30 to 16 is the 48. LCM will be your 48 will be the LCM of 12, 16 और 24 का LCM क्या होगा हमारे पास 48 आएगा. अब जो हमारा LCM है, LCM की जो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो तो है 48 के प्लस 4. दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर. अब इस k की वैल्यू क्या होगी, यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो हमारा नंबर है वो 4000 और 5000 के बीच में भी आए और वो सबसे हाईएस्ट नंबर भी हो. तो हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम 5000 को डिवाइड करेंगे 48 से. हमने 5000 को यदि 48 से डिवाइड किया तो we will be getting 104.16. This is the value which we will be getting. यानी कि जो आंसर k की वैल्यू होगी वो 104 के आसपास की होगी, क्योंकि इसको यदि हम डिवाइड कर रहे हैं हमें जो वैल्यू चाहिए वो 5000 के आसपास की चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए. यानी कि 5000 को हमने 48 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 104.16. यानी कि हम क्या करेंगे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 से. 48 को मल्टीप्लाई किया 104 से, सो इट विल बी
4992, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या है 48 के +4, बिकॉज इन ईच केस रिमाइंडर इज 4, सो रिक्वायर्ड नंबर इज दिस। सो फाइनल आंसर विल बी 4992 +4, दैट इज 4996। और यही वो नंबर है जो कि लार्जेस्ट भी होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और जो कि 5000 और 4000 के बीच का नंबर होगा। The next question is, let P be the remainder when 7 raised to the power 84 is divided by 342 and Q be the remainder when 7 raised to the power 84 is divided by 344। हमें वैल्यू फाइंड करनी है P माइनस Q की, यानी कि यदि 7 raised to the power 84 को 342 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो है P, और जब 7 raised to the power 84 को 344 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो है Q। हमें P माइनस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे अगेन हमने जब डिस्क्रिप्शन किया था, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा था, तब हमने देखा था कि यदि इस तरीके से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 7 raised to the power 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 raised to the power 84 जो कि हमें चाहिए 342 344 के आसपास, यानी कि अगर हम 7 raised to the power 3 करें तो 7 7 is 49 and 49 into 7 will be और 343, यानी कि 7 raised to the power 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 343 होती है। तो हम 7 raised to the power 84 को लिख सकते हैं 7 raised to the power 3 whole raised to the power 3 2s are 6 3 8s are 24, 7 raised to the power 3 whole raised to the power 28 is 7 raised to the power 84 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको फर्स्ट कंडीशन में डिवाइड करना है 342 से, सेकंड कंडीशन में डिवाइड करना है 344 से। तो जब हमने इसको 342 से डिवाइड करना है तो हमने 7 raised to the power 3 को लिखा 343 raised to the power 28, इसको डिवाइड करना है हमें 342 से। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को 342 + 1 raised to the power 28 डिवाइडेड बाय 342। हमने देखा था जब a + b होल रेज टू द पावर कोई भी नंबर हो डिवाइडेड बाय a हो तो हमारा इसको यदि हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे तो हमारी टोटल 29 टर्म्स बनेंगी। इन टर्म्स के अंदर जो फर्स्ट इनिशियल टर्म्स होंगी उन सब कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि हर कंडीशन में 342 आएगा ही आएगा, एक आपका जो फैक्टर होगा वो 342 होगा ही होगा। तो दैट्स द रीजन आपके उन सब कंडीशन के लिए रिमाइंडर विल बी 0। तो जो रिमाइंडर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन के लिए बनेगा, जो लास्ट का आपका जो लास्ट की टर्म बच रही है, जिस लास्ट की टर्म में क्या होगी 1 raised to the power 28 जो होगी उस टर्म की वजह से आपका रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है जिसकी वजह से रिमाइंडर आना है दैट इज 1 raised to the power 28 डिवाइडेड बाय 342। अब 1 raised to the power 28 मीन्स 1 ओनली। अब 1 को यदि हम डिवाइड करें 342 से तो योर रिमाइंडर विल बी 1, यानी कि P की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 1। अब सेकंड कंडीशन आते हैं जब 344 से डिवाइड करना है। अब 344 है, अब न्यूमरेटर तो आपका सेम ही है 7 raised to the power 3 ही है, दैट इज योर 343। तो 343 आपका raised to the power 28, इसको हमें डिवाइड करना है 344 से। अब इसको हम 343 को क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 344 माइनस 1 raised to the power 28 ओवर 344। अब जब अगेन जो इनिशियल की जितनी भी टर्म्स आएंगी, जब इसको हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करेंगे न्यूमरेटर को, तो इनिशियल जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में 344 आएगा। 344 उसका एक फैक्टर होगा, यानी कि उन सब कंडीशन के लिए जब हम 344 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर 0। हर कंडीशन में रिमाइंडर 0 ही होगा, यानी कि सिर्फ रिमाइंडर किस पे डिपेंड कर रहा है, लास्ट टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एंड द लास्ट टर्म विल बी योर 1 raised to the power 28 डिवाइडेड बाय 344। 1 raised to the power 28 means 1 only, 1 over 344, रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, यानी Q की वैल्यू क्या हो गई 1, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P माइनस Q की, दैट विल बी 0, बिकॉज P की वैल्यू भी 1 आ रही है और Q की वैल्यू भी 1 आ रही है, सो इट्स वैल्यू विल बी योर 0। The next question is, when 8, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, कोई लीस्ट नंबर x है जिसको जब ये सारे नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं हर कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है, बट x इज डिविजिबल बाय 7, लेकिन जो x की वैल्यू है वो 7 से डिविजिबल है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ जैसा ये है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो भी हमारा इन नंबर्स का LCM आएगा उसको हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
प्लस में आपका रिमाइंडर दैट इज योर 3 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर. So first of all, the required number will be, required number is, we can multiply the LCM of these numbers. K multiplied by LCM of your 8, 16, 18, 20, 25 and in each case your remainder is 3, so it is your plus ka 3. This is the required number. So first of all, we will be finding the LCM of all these numbers. So LCM of 8, 16, 18, 20 and 25. 2, 4 is 8, 2, 8 is 16, 2, 9 is 18, 2, 10. Then again 2, 2s are 4, 2, 4 is 8, 2, 5 is 10, 2, 1, 2, 9, 5, 25. Then again 2. We can divide it directly by 9 even, or we can divide it by 3 first and then again by 3. Then again by 3. Then divide by 5. 1, 1, 1. This 5 will, this 5 again by 5. So LCM will be multiplication of all these numbers. Now this 2 multiplied by 5 will become 10. This 2 multiplied by 5 will become 10. So 2 zeros are there. Then 2 2s are 4, 4 and 3 3s are 9. 4 9 is 36. So 3600 will be the LCM of 8, 16, 18, 20 and 25. Now the required number will be 3600K plus 3 is the required number. Now if we are going to keep the value of K as 1, if K is 1, so this will become 3600 plus 3, that is your 3603. We will check whether the number is divisible by 7. 7 5 is 35, then 1, 7 1 is 7, 33, no. If we are going to take K is equals to 2, the number will become 3600 multiplied by 2 plus 3. 6 2s are 12 to carry over 1, 3 2 6 and 7, 7203. So let's check whether it is divisible by 7 or not, because the number which will be getting should be divisible by 7 also. This is the condition given to us. So we'll be checking. 7 1 is 7, 7 to 14, 14, then 6, so 9 7 9 63, no. 7 1 is 7, 7 2 is 14, then it will be 14, then 6, 6, 7 9 is 63, right? It is divisible. So this is the required number which we are looking for. Find the value of x. So x will be 7203 will be the value of x. Now let's understand some more questions. So here is the 7th question. Given that 100 into 99 into 98 till 1 divided by 100 raised to the power n is an integer. अगर इसकी वैल्यू एक इंटीजर आ रही है तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ये इंटीजर आ रही है यानी कि ये जो नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 100. जो ऊपर का न्यूमरेटर जो भी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो 100 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 100 से डिविजिबल होने के लिए वी नीड टू चेक कि कितने जीरोज आएंगे आपके न्यूमरेटर के अंदर. तो न्यूमरेटर में जीरोज जो आएंगे वो किस वजह से आएंगे, या तो 5 की वजह से आएंगे या फिर आपके 10s. यानी कि जैसे 5 हुआ, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 10, और 10 जो आ रहा है उसमें तो 1 0 आ ही रहा है. यानी कि जो 5s हैं, क्योंकि 2 तो हमारे पास मल्टीपल होते हैं, आपके 2 में भी 2 आ रहा है. यदि हम 4 की बात करें तो 4 को भी हम 2 into 2 लिख सकते हैं. यदि हम 8 की बात करें तो उसको हम 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं. यानी कि जो 10 बन रहा है वो 2 multiply by 5 करने पर बन रहा है, या फिर आपका 10 है 20 है उसमें ऑलरेडी एक 10 है ही है. सो हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर इन द न्यूमरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट. तो एक जीरो आएगा आपका 5 की वजह से. 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक जीरो आया 5 की वजह से. 10 की वजह से आपके पास 1 0 आ गया. 10 में 1 0 है तो 1 0 आ गया. अब आपका 15 हुआ, 15 से आपका 1 0 आ गया, क्योंकि 15 को हम लिखेंगे 3 into 5, और जब ये 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 12 से मल्टीप्लाई हुआ या कुछ भी हुआ तो हमारे पास एक जीरो आ जाएगा. फिर हम 20 की बात करें तो 20 से हमें मिल गया 1 0. 25 की बात करें तो 25 के अंदर को हम लिख सकते हैं 5 into 5, यानी कि 2 5s आ गए हमारे पास. यानी कि 25 से हमें मिलेंगे 2 zeros मिलेंगे. फिर हमें 30 से मिला 1 0, फिर हमें 35 से मिला 1 0, हमें 40 से मिला 1 0, 45 से मिला 1 0, 50
अगर 50 की बात करें तो अगेन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 50 से हमें 2 जीरोज मिलेंगे। 50 जो होगा 50 से हमें क्या मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। अब आया हमारा पास 55, 55 से हमें मिला 1 जीरो, 60 से मिला 1 जीरो, आपका 65 से मिला 1 जीरो, 65 के बाद 70 से मिला 1 जीरो, 75 से अगेन हमें 2 जीरोज मिलेंगे, क्योंकि 75 में भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल बी 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 5s आ रहे हैं, यानी कि वी विल बी गेटिंग 2 जीरोज फ्रॉम इट। 80 से मिला 1 जीरो, 85 से मिला 1 जीरो, 90 से मिला 1 जीरो, 95 से मिला 1 जीरो और 100 से मिले 2 जीरोज। हमारे को इतने सारे जीरोज मिल गए। नाउ वी विल बी काउंटिंग हाउ मेनी जीरोज वी विल बी गेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 जीरोज हो गए। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें हाफ नंबर ऑफ जीरोज, मतलब यहाँ पे 24 जीरोज हैं और हम कंप्लीटली डिवाइड करें उसके लिए एट अ टाइम हमें 2 जीरोज चाहिए, क्योंकि हम इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे कितनी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 12, यानी कि 100 की पावर 12 यदि हम करते हैं तो 100 की पावर 12 के अंदर कितने जीरोज हो जाएंगे, 24 जीरोज हो जाएंगे, और 24 जीरोज हमारे पास न्यूमरेटर में भी है। सो वी विल बी गेटिंग अ इंटीजर। सो n की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 12 होगी। द वैल्यू ऑफ n विल बी 12. The next question is, what is the number of factor of 24 raised to the power 3 minus 16 raised to the power 3 minus 8 raised to the power 3? इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो अभी हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर का स्टार्टिंग के अंदर, तब हमने देखा था कि यदि दो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, p1 रेज टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय p2 रेज टू द पावर b, इसमें यदि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इट विल बी a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1, यानी कि पहले हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, इसका फाइंड आउट करनी होगी इसकी वैल्यू प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो यदि हम देखें 24 रेज टू द पावर 3 इट इज, तो 24 रेज टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 3s are 24, 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस इट इज योर 8 रेज टू द पावर 3। तो इन सब में से 8 raised to the power 3 could be taken common. So 8 raised to the power 3 taken common. Remaining will be, यहाँ पे 8 raised to the power 3 common लिया तो बचा 3 raised to the power 3 minus 8 raised to the power 3 common लिया तो बचा 2 raised to the power 3 minus 1 raised to the power 3 is the remaining one. अब यदि हम इसको सॉल्व करें, so 8 raised to the power 3, 8 को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं। तो 8 को हमने लिखा 2 raised to the power 3 whole raised to the power 3, 3 3s are 9, 3s are 27 minus 2 raised to the power 3 will be your 8 minus 1. So if we will be subtracting 8 and 1 9, if we will be subtracting 9 it will be your 7 here 18. So it will be 2 raised to the power 9, 3 raised to the power 3 will be 9 multiplied by it is your 18. 18 could be written as 2 multiplied by 3 multiplied by 3. That means 2 raised to the power 9 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Or we can say 2 raised to the power 9 into 2 will be 2 raised to the power 10 multiplied by 3 raised to the power 2. अब यहाँ पे P1 की वैल्यू हो गई 2, P2 की वैल्यू हो गई 3, प्राइम नंबर्स हो गए 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हो गए, A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 2। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इट विल बी 10 plus 1 multiplied by 2 plus 1, a plus 1 plus multiplied by b plus 1. So it is your 11 multiplied by 3, that is 33 will be the number of factors in this expression. Now the next question is, a grasshopper tries to climb a slippery wall 3.4 meter high. The height of the wall is 3.4 meter. Every time the grasshopper jumps 36 centimeter, स्लाइड्स डाउन 20 सेंटीमीटर। जब भी वो 36 सेंटीमीटर अप जंप करता है तो वो स्लिपरी वॉल होने की वजह से 20 सेंटीमीटर डाउन फॉल हो जाता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रासहॉपर टू क्लाइंब द वॉल? अब देखिए यहाँ पे इट इज योर 3.4 मीटर इट इज, एंड ओवर हियर इट इज योर इन सेंटीमीटर। तो यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सो इट इज योर वॉल की जो हाइट है
इट इज योर 340 सेंटीमीटर है। अब यदि वो 36 सेंटीमीटर जंप कर रहा है तो वो 20 सेंटीमीटर तो डाउनफॉल हो जाता है। यानी इफेक्टिवली यदि हम देखें तो एक जंप के अंदर वो कितना क्लाइंब कर रहा है, 36 माइनस 20 दैट इज 16 सेंटीमीटर। इफेक्टिवली यदि हम देखें तो एक जंप के अंदर वो आपका इतना क्लाइंब कर पा रहा है। अब देखिए जब लास्ट टाइम वो जंप करेगा तब तो वो ऊपर बॉल टॉप पे पहुंच ही जाएगा, उस केस में तो वो स्लिप करेगा नहीं। तो जब लास्ट जंप करेगा दैट मीन 36 सेंटीमीटर जब भी लास्ट में जंप करेगा उसके बाद ही इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन, राइट। यानी कि यदि हम इस 340 में से उस लास्ट वाले स्टेप को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे इस जंप के लिए 1 स्टेप लग रहा है, 1 जो है जंप लग रहा है ये इस स्टेप के लिए, लास्ट वाले स्टेप के लिए। तो यानी कि जो लास्ट जंप होगा उससे पहले तक उसे कितने जंप्स लगाने हैं, कितना डिस्टेंस कवर करना है। सो इट विल बी योर 10 माइनस 6 विल बी 4, इट विल बी 0, 304 सेंटीमीटर का उसको हाइट कवर करना है, तब तक उस हाइट तक उसको जंप करना है। एक जंप में इफेक्टिवली वो 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सेकंड लास्ट स्टेप, क्योंकि लास्ट स्टेप में तो वो 304 से 340 तक पहुंचेगा, तो सेकंड लास्ट स्टेप तक उसको कितने जंप लग रहे हैं। सो इट विल बी 304 का डिस्टेंस कवर करना है और एक जंप में 16 सेंटीमीटर ओवरऑल क्रॉस हो रहा है। सो इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड दीज इट विल बी योर 90, यानी 19 जंप्स के अंदर वो 304 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुंच जाएगा। जब 19 में यहां तक पहुंचा उसके बाद जब वो 20th जंप करेगा देन ही विल क्रॉस योर 340, जो वॉल है उसके टॉप पे वो पहुंच जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स और टोटल नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड विल बी योर 20। Now let's understand some more different type of questions. So here is the 10th question. When 10 raised to the power 100 is divided by 7, the remainder is. यदि 10 raised to the power 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। So we have learned during the concept that 10 raised to the power 100 हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। So 10 raised to the power 100 divided by 7. 10 could be written as 7 plus 3 raised to the power 100 divided by 7. यदि हम इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांशन के अंदर जो इनिशियल टर्म्स आएंगी उन सब के अंदर 7 एक फैक्टर रहेगा, यानी उस हर कंडीशन के अंदर अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। सो रिमाइंडर किस वजह से आएगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ योर एक्सपांशन, और जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 3 raised to the power 100 होगी। जो लास्ट टर्म होगी उसमें आपका 7 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, 7 नहीं होगा उसमें, तो जो लास्ट टर्म होगी दैट विल बी योर 3 raised to the power 100, यानी जो भी रिमाइंडर बनेगा वो 3 raised to the power 100 की वजह से बनेगा। सो वी कैन राइट इट एज 3 raised to the power 100 डिवाइडेड बाय 7 हमको करना है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब 3 raised to the power 100 यदि हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें, यदि हम मॉड्यूलस आपका अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम देखते हैं कि 3 की पावर 1 मीन्स 3 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3 की पावर 2 दैट मीन्स 3 3s are 9 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 2। 3 की पावर 3 दैट मीन्स 81 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो योर रिमाइंडर विल बी 6। सिमिलरली 3 की पावर 4 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4। 3 की पावर 5 को करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 5, और 3 की पावर आपके 6 को यदि हम करेंगे तो आपका जो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। और जब 3 की पावर 7 को वापस से हम 7 से डिवाइड करेंगे, इन दैट केस अगेन द रिमाइंडर विल बी 3 ओनली। आफ्टर अ सर्टेन नंबर ये जो होता है वो रिपीट होने लगता है, जो आपका रिमाइंडर है वो हमारा रिपीट होने लगता है। तो इसलिए यानी कि 6 स्टेप तक के लिए रिमाइंडर विल बी सेम ओनली, इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो अब हम 3 raised to the power 100 को क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 100 could be written as 3 raised to the power 6 हमने लिया। अब उसको हम 6 को किससे करें, 6 1 जा 6, देन इट इज योर 46, 6 35, 6 6 जा 36, 6 6 जा 30, 16 6 जा 96, 6 6 30 96 इट इज। तो अब हमको 3 की पावर 100 है, 96 यहाँ तक हो चुकी, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 7। तो हम 3 raised to the power 100 को क्या लिख सकते हैं, हमें इसको 3 raised to the power 6 की टर्म्स में लिखना है। तो 3 raised to the power 6 लिखा, यदि 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 96, लेकिन ये तो 100 था तो 96 तक तो यहाँ कवर हो गया,
बाकी बचे हमारे 4, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 4। हमने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर लेंगे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 रेज टू द पावर 100 ओनली। अब 3 रेज टू द पावर 6 की पावर 16 इतने तक तो रिमाइंडर विल बी we are need not to consider क्योंकि it is going to repeat after every 6 step। तो यानी हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ तक उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो किस वजह से आएगा, 3 रेज टू द पावर 4 की वजह से आएगा। तो 3 रेज टू द पावर 4 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, जब 3 रेज टू द पावर 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी और 4, सो द रिमाइंडर विल बी 4. This is how we can use the concept of a modulus arithmetic and we can find the remainder. The next question is the sum of infinite series। ये infinite series है, हमें इसका sum find out करना है। तो देखिए पहले हमने 1/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 1/5 का स्क्वायर हो गया। 1/5 को 1/7 से किया, सो माइनस ऑफ 1/5 इंटू 1/7। 1/5 के स्क्वायर को 1/5 के स्क्वायर से किया तो इट इज 1/5 रेज टू द पावर 4 माइनस 1/5 स्क्वायर को 1/7 के स्क्वायर से किया तो 1/5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/7 स्क्वायर। देन 1/5 क्यूब को 1/5 क्यूब से किया तो 1/5 रेज टू द पावर 6 माइनस 1/5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 रेज टू द पावर 3। ये जो सीरीज है ये हमारी कंटिन्यूस चल रही है। अब हम देखें तो इसमें दो तरीके की सीरीज है, एक सीरीज तो ये है 5 वाली, और जो दूसरी सीरीज बन रही है वो 1/5 इंटू 1/7 वाली सीरीज बन रही है। तो इन दोनों सीरीज को हम सेपरेटली लिखते हैं। पहली सीरीज है 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 4 1/5 6, ये एक सीरीज है। दूसरी सीरीज है, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी में माइनस है, तो इट इज योर 1/5 इंटू 1/7। दूसरी टर्म हो गई आपकी 1/5 स्क्वायर इंटू 1/7 स्क्वायर, और यू कैन से 1/35 प्लस 1/35 स्क्वायर, लाइक दैट इवन वी कैन से 1/5 क्यूब इंटू 1/7 क्यूब, लाइक दैट। तो अब हम देखें यहाँ पे तो 1/5 स्क्वायर दैट इज 1/25 इसकी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है, 1/5 के स्क्वायर में यदि हमने 1/5 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो वी विल बी गेटिंग 1/5 रेज टू द पावर 4। अब इसमें हमने अगेन 1/5 रेज टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई किया तो वी विल बी गेटिंग 1/5 रेज टू द पावर 6। यानी कि जो सीरीज है इट इज इन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इट इज इन जीपी, राइट, क्योंकि एक कॉमन नंबर थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इस केस में देखें तो फर्स्ट टर्म इज योर 1/5 इंटू 1/7, सेकेंड इज 1/5 स्क्वायर इंटू 1/7 स्क्वायर, थर्ड इज 1/5 क्यूब इंटू 1/7 क्यूब। यानी कि यदि फर्स्ट टर्म में 1/35 हुआ, इसमें अगर 1/35 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल बी गेटिंग द सेकेंड टर्म। फिर तीसरे में अगेन 1/35 से मल्टीप्लाई करें यदि इस टर्म में तो वी विल बी गेटिंग द थर्ड टर्म। तो अगेन द सीरीज इज इन जीपी एंड वी नो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि जो अगर हमारी जो इक्वेशन होती है, जो हमारी सीरीज है वो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, इन दैट केस सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज इज a/1 माइनस r। पहले फर्स्ट सीरीज की बात करते हैं। a की वैल्यू है 1/5 स्क्वायर दैट मीन्स 1/25। 1/25 इज द फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a की वैल्यू है, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, दैट इज इवन 1/25। ये हमारी फर्स्ट सीरीज के लिए है। तो अगर इसमें हम सम ऑफ द ऑल द टर्म्स निकालें फर्स्ट सीरीज के लिए, इट विल बी a is 1/25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, r is 1/25। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर, 25 will be the LCM in the denominator, 25 minus 1 will be 24, 25 कैंसिल, 1/24 फर्स्ट वाली सीरीज का हमारे पास LCM आ गया, आपका सम आ गया। अब सेकंड सीरीज देखते हैं। सेकंड सीरीज के अंदर यदि देखें तो a की वैल्यू है 1/35 और r की वैल्यू भी क्या है, 1/35 ही है। अब हम यदि सीरीज को सम करें तो इट विल बी a is 1/35 ओवर 1 minus 1/35। In the denominator LCM will be 35, 35 minus 1 will be 34, 35 is going to cancel, तो sum of the series will be 1/34। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस वाली की हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/24,
इस वाली सीरीज का सम जो आ गया वो हमारे पास आ गया 1/34, बीच में माइनस का साइन है, सो विल बी टेकिंग माइनस साइन. सो दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इट आउट. अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम विल बी 816. 34 minus 24, that will be your 10 upon 816. 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 8 is 16. So 5 upon 408 will be the sum of this infinite series. The next question is 0.235 bar. Bar is on 3 and 5 only, not on 2. So how we can write this in terms of your fractions? So इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए what we will be doing is, हमने अज्यूम कर लिया कि x की वैल्यू है 0.235 बार. ये जो गिवन नंबर है वही हमने x की वैल्यू अज्यूम कर ली. अब यहाँ पे एक डिजिट ऐसी है जो कि रिपीट नहीं हो रही है. एक डिजिट ऐसी है मतलब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे because one digit is there. So 10x is equal to 2.35 बार. क्योंकि एक डिजिट ऐसी थी जो रिपीट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इस x वाली, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट हैज बिकम 10x इज इक्वल टू 2.35 बार. अब इस सेकेंड इक्वेशन को, क्योंकि 2 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, यानी कि इस सेकेंड इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बिकम 1000x. It is equivalent to 235.35 bar. This is your third equation. अब इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए 2.35 बार की कंडीशंस में चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000x is equivalent to 235 को हम क्या लिख सकते हैं 233 point plus 233 we have taken 2.35 bar. This we can write it as 235.35 bar ko we have written 233 plus 2.35 bar. Now this 2.35 bar is your 10x. This is the value of 10x. So instead of this we can write it as 10x. So it is your 1000x is equal to 233 plus 10x. इस 10x को इधर लिया, सब्ट्रैक्शन में जाएगा. 1000x minus 10x will be your 990x. It is 233 and the value of x will be 233 over 990. और हमने ये x की ही वैल्यू अज्यूम की थी, ये x ही अज्यूम किया था, इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इट्स विल बी 233 over 990. The next question is, a number when divided by 53 gives 34 as quotient. अगर डिवाइड किया जाए नंबर को 53 से, यानी कि दिस इज योर डिवाइजर. ये क्वेश्चन हमें गिवन है और 21 रिमाइंडर गिवन है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है. वी नो कि डिविडेंड इज इक्विवेलेंट टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो नंबर क्या है, डिविडेंड है, डिवाइजर है हमारे पास 53, क्वोशिएंट है हमारे पास 21, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट इज 34. Quotient is 34 and remainder is your 21. So this is the required number. If we will multiply these two, 53 and 34, we will be getting 1802. So the required number is 2 plus 1, 3. It is 2 over here. 1823 will be the required number. Now let's understand last few questions. So here is the 14th question. If 436p5 is divisible by 3, find the largest value of 3. We know कि अगर हमें 3 से divisibility check करनी है तो what we will be doing is we will be finding the sum of all the digits. If the sum of all the digits is divisible by 3, number will be divisible by 3. तो यदि हम इन सब digits का sum find out करें तो 4 plus 3 plus 6 plus p plus 5, it will be 6 and 4 will be 10, 10, 15, 18. 18 plus p, ये हमारे पास इन सब डिजिट्स का सम आ गया. नाउ इफ वी आर गोइंग टू सी वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, हाउ विल बी डूइंग दैट. 18 जो है 18 आपका डायरेक्टली डिविजिबल बाय 3 है. 3 6 इज 18, यानी कि यदि हम p की वैल्यू 0 रखें तब भी आपका इनका सम जो होगा वो होगा 18 plus 0, दैट इज योर 18 ओनली, विच विल बी डिविजिबल बाय 3. p की वैल्यू आपकी 3 भी हो सकती है क्योंकि 18 plus 3 will be 21 which is divisible by 3.
3 की जगह 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, लेकिन हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है p की, जिससे कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो। तो ये नंबर विल बी ऑन p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, सॉरी 9 हो जाएगी। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि यदि 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 27 विच इज डिविजिबल बाय 3। सो वैल्यू ऑफ p इज 9। Which smallest composite number can divide sum of first 12 natural number? We know कि sum of first n natural number is given by n plus 1 by 2. तो आपका first 12 natural numbers का sum कितना होगा? n की वैल्यू 12 हो गई, so it will be 12 multiplied by 12 plus 1 will be 13 divided by 2. This will be the sum of first 12 natural numbers. So 2 6 is 12, 6 3s are 18, 678. तो sum of first 12 natural numbers will be 78. अब 78 किस smallest composite number से divide हो रहा है? So 1 is neither a prime number nor a composite number. जो 1 आपका है वो ना तो prime number की कैटेगरी में आता है, ना ही composite number की कैटेगरी में आता है। अगर 2 बात करें तो 2 आपका prime number हो गया, 3 भी prime number हो गया, तो smallest composite number 4 होता है। 4 के बाद 5 is a prime number, then it is your 6 is a composite number, 7 is a prime number, then 8 is your composite number। तो हम चेक करते हैं कि किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो 4 से यदि हम चेक करें तो 4 1 is 4, then it comes 38, so it is not divisible। तो 4 से तो चेक नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। If we will do it by 6, 6 1 is 6, 3 is 18 rest। तो 6 जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जिससे नंबर डिवाइड हो रहा है, इट इज योर 6। The next question is, if p is a digit such that 6954p is divisible by 11, then find the value of p। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए व्हाट वी नो इज कि हम ऑल्टरनेटिव जो आपके नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको ऐड करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास सम आएगा उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ योर डिफरेंस इज ईदर 0 और डिविजिबल बाय 11, देन योर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो अब हम देख लेते हैं, पहले यहाँ से p से स्टार्ट किया, p में 5 ऐड किया और 6 ऐड किया, तो 6 प्लस 5 प्लस p, तो इट इज 11 प्लस p। अब हमने लिया इधर 9 प्लस 4, तो ऑल्टरनेटिव नंबर्स, तो 9 प्लस 4 किया तो 13 हो गया। अब ये कब डिविजिबल होगा? जब इन दोनों की का हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो या तो हमारे पास 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। अब देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि 11 का मल्टीपल आए, तो ये पॉसिबल है कि ये नंबर, इन दोनों का जो सम है वो 0 आए, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि यदि p की वैल्यू हमने 2 रखी तो 11 प्लस 2 13 हो जाएगा, 13 हो गया तो यहाँ पे भी 13 है, 13 माइनस 13 विल बी 0। अब यदि इन दोनों का डिफरेंस 11 आए, उसके लिए आपकी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसके लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी 13। तो 13 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि p तो एक डिजिट है, इट कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि जो p की वैल्यू होगी दैट विल बी 2। 2 होने पर इन दोनों ऑल्टरनेटिव जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो हमने सम किया और उसके बाद फाइनली जो उनका डिफरेंस निकाला, दैट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 0। सो वैल्यू ऑफ p विल बी 2। Now let's see the last question. When fm is equivalent to m raised to the power 5 plus 5m raised to the power 4 minus 3m plus 7 is divided by m minus 2, find the remainder। We know कि हमारे को यदि कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से कुछ गिवन है, यदि हमें उसे डिवाइड करना है m minus 2 से, यानी कि यदि हमारे पास कोई सपोज fx है, कोई fx हमें गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, यदि उसे हमें x माइनस a से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू fa। हम करते क्या है, x माइनस a को इक्वेट करते हैं 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। यानी यदि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी हमारा फंक्शन है x के टर्म्स में, उसमें x को यदि हम a से रिप्लेस कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर भी होगा। That we have learned in class 9th। तो अब यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम में, तो अब इसमें इसको हमें m के टर्म्स में हमारे पास फंक्शन है, इसको हमें डिवाइड करना है m माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर में क्या करेंगे, m माइनस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, यानी m की वैल्यू क्या हो गई 2। यानी कि यदि हम f2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो भी f2 की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर भी होगा। तो f2 की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 5 plus 5 2 raised to the power 4 minus 3 multiplied by 2 plus 7. This is the value. So 2 raised to the power 5 is 32. 2 to 4 to 8 16 32 it is.
2 raised to the power 4 will be your 16. 16, 5 is 80. Minus 3 2s are 6 plus 7. If we are going to add these two, it will be your 2, 11 minus 6 plus 7. अब minus 6 करेंगे और plus 7 करेंगे तो it is going to increase by 1, so it will be 113. तो जो remainder आएगा वो क्या आएगा 113. So these are the various concepts which are used while we are solving various questions which are asked in various competitive examination related to number system. We have tried to take as much possible the concepts as much it was possible. Hope it is clear to you. Soon we'll be coming with the more videos related to various competitive examinations. Thank you.